पता ही नहीं चल रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। टुडे द फर्स्ट सेशन एंड as usually due to the technical uh, glitches here in Kolkata and due to the some problem, the session is started late, but I hope from tomorrow it's going to be sharp 3 o'clock. So what's the today program is? Today program is very clear. Today we are going to discuss about the taxation. It's not about the GST, it's not about the income tax, it's about the taxation. The approach of taxation is going to be very much important. The most important thing in taxation, the most important thing in taxations you need a dedications. वो भूख कि ये सब्जेक्ट मुझे सीखना है। ये सब्जेक्ट के पीछे इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। इट्स वंडरफुल। यू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट, और वो प्यार तभी होगा जब प्यार होगा आपको सब्जेक्ट से, देन यू स्टार्ट लर्निंग। और जब लर्निंग इस पर स्टार्ट होता है तो यू ऑलवेज थिंक ये प्रोविज़न क्यों आया, ये प्रोविज़न क्यों आया, वाई जीएसटी केम, वाई इनकम टैक्स केम, व्हाट्स द रियल फंडामेंटल थिंग्स आर देयर। तो ये आपको समझना है, ये आपको सीखना है। So it's a long journey. I started today, Shrey is there. So we are going to right now give you the lecture which are going to be very much important for the November 2020 exam. November 2020 Finance Act 2019 is going to be there. So in whatever changes took place in the Finance Act 2020 is not going to be applicable for November 2020. This new amendment, new Finance Act 2020 will be applicable from the May 2021. So don't worry, just enjoy the lecture, because until unless you're not going to enjoy the lecture, everything is going to be in a van. So what is the most important thing? So आपके मन में विचार आ रहा होगा
कि ये टैक्सेशन होता क्या है। मी सीए विक्रम बियानी, बस इतना ही काफ़ी, आप मेरा नाम जान के रखो, other things are irrelevant, so that don't waste your time in respect of anything else. We are going to start the subjects. So point number 1, if we start the taxation, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगा ये टैक्स होता क्या है, तो आप उसका क्या जवाब दोगे? लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, some theoretical mathematical language is there. It's revenue generated by the government, these that, to fulfill the economical needs. We are not here to discuss the economics here. We are here to discuss point to point calculation, point to point with reasoning. So in starting you are not going to raise a reasoning questions, because reasoning is only going to be there जब वो आप जब एंट्री करोगे, कब? जब आप सब्जेक्ट के भीतर जाओगे। अभी आपको सीखना है, next 2 or 3 lecture is going to be comprise what is going to be taxations. So I hope you will enjoy, and if you will enjoy, then tell me. Let's start. What is tax? If somebody is going to say what is tax, so what you are going to say, you know? You are going to say it's a compulsory. What do you mean by compulsory? It's a compulsory. Compulsory, what is compulsory? देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? कंपल्सरी मतलब ही वर्ड आता है देना पड़ेगा। जब मैं कल बाहर घर पे से निकला तो 3 लोग मेरे पास आए, मानव आया, अंशुल सर आए, श्रेय सर आए, एंड उन्होंने मुझे ऐसे चाकू दिखाया एंड कहा विक्रम यानी सर गिव मी 100 रुपीज़। मैंने कहा फॉर व्हाट? बोला माता की चौकी करनी है। ओ माय गॉड, मैंने डर के मारे उनसे पंगा कौन लेगा, मैंने उनको 100 रुपये दे दिए। दिस इज कॉल्ड गुंडा टैक्स। वी से इट्स अ गुंडा टैक्स, बट वी आर नॉट पेइंग अंडर एनी लॉ, वी आर पेइंग नो ना कंपल्सरी execution of money, compulsory execution of money under a law. A fundamental things is there. Be very clear about this. This is a compulsory execution of money under a law. Law means what? The Gunda law? No, this law must be governed by the parliament. This law must be formulated by the parliament. This law must be passed by the upper house and the lower house. These are the things. So when the law was implemented, जब लॉ इसे लेके आते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से आता है। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने कल अचानक कह दिया oh my god, due to the COVID-19 there's a revenue shortage in India, government to state government and central government, निर्मला सीतारमन जी जस्ट कल से 2000 रुपये करके टैक्स बढ़ा दीजिए। निर्मला सीतारमन is going to say listen sir, it's a long journey. First whatever you are going to say, ask me. First I have to check the constitution. This constitutions implies क्या मेरे पास ये पावर है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि इस टैक्स को वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो निर्मला सीतारमन इज गोइंग टू ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर कॉन्स्टिट्यूशन से इज गोइंग टू ओपन द शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो दैट गोइंग टू बी इन द शेड्यूल, इन एट लास्ट Sitaraman is going to open the schedule number 7, that is called 7th schedule. And in 7th schedule there are 3 entry number 1, entry number 2, entry number 3. The entry 1 is regarding the central government power, entry number 2 is regarding the state government power, and entry number 3 is regarding the concurrent power. So we are not going to discuss anything about the entry 3 in the entire syllabus. We are going to discuss everything in respect of entry number 1 and 2, because 2 is also needed for the GSTs and some portion of state excise. So what is going to be rule? In entry number 1, सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर एंट्री नंबर 1 को चेक करेगा, एंड इन एंट्री क्या करेंगे वो ये देखेंगे कि क्या इसके भीतर जो बनाए गए एंट्री है। तो आप जब
सेवन शेड्यूल में आप जाते हो तो वहाँ पे एंट्री नंबर 82 आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है एंट्री नंबर 82 में लिखा गया है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, tax on income other than agriculture income. Then 83 is regarding custom, 84 is regarding some portions of IDT. These are the logical views. So this is very easy to say कि ऐसे टैक्स लगेगा वैसे टैक्स लगेगा ऐसे कर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. The logic view is very clear कि you must know the first of all the constitutions, first of all the list number, then you must know whether central government is in a position to impose a tax or not. अभी अगर मैं बोलूं लीकर के लिए कि शराब के दाम मोदी जी ने बढ़ा दिए, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि लीकर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है. स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू गो अहेड, सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं है, कोई भी पावर नहीं है. तो स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए अगर लीकर की रेट अभी कोविड में 70% इंक्रीज हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसे इंक्रीज किया है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. तो वी वेरी केयरफुल when something we are going to read as a CA student, you must be clear जो पेपर या न्यूज़पेपर या आर्टिकल या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में जो चीज़ें चल रही है, इज इट ट्रू फैक्ट और नॉट. 90% केसेस यू फाइंड ऑल आर द अनट्रू फैक्ट. वाई ऐसा क्यों होता है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? The reason behind that is we are not aware about the taxation system, taxation culture in India. Anytime anybody can say the excise duty बढ़ गई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, मोदी जी आप क्या कर रहे हो? सर, मोदी जी क्या कर रहे हैं? The petroleum is still not in the GST, petroleum is still in the excise, old version of excise, VAT and CST. Every state government, whatever revenue is generated, the 50% is shared to the state government and 50% to the central government. And why you are always blaming the central government? आप सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम करते हो इन सब चीजों के लिए? स्टेट गवर्नमेंट भी तो मलाई खा रही है ना, आप उनको बोलो. दिस इज द वे. So what is taxation? If somebody is going to ask about the taxation, what you are going to say? It's a compulsory execution of money under a law. The law. Then point is going to be law. What is law? The law. It is passed by Parliament. Okay. The Parliament has two body. Everybody knows. One is called Upper House. Second one is called Lower House. When we Upper House means this is Rajya Sabha, and lower house means लोक सभा. राज्य अपर हाउस, जितने अपर है ना, जिनके पांव कब्र में होते हैं, वो सब इस अपर हाउस में रहते हैं बिना इलेक्शन के. दिस इज अ यूनिक थिंग. विदाउट इलेक्शंस दे आर नॉमिनेटेड. तो वी कैन फाइंड नंबर ऑफ बिल आर स्टक इन द राज्य सभा बिकॉज दिस ऑल आर देयर. बट इन लोअर हाउस वी कैन से दैट इज इन लोक सभा. Right now, lot of bill are passes. कितना GST को भी लोकसभा ने किया. Until unless a government is not in full power, they are not in a position to pass a lot of bill. Even those are very, very important bill for the Indian economy, Indian cultures and everything. Why? The system is so bad. Because first you have to pass in the lower house, then you have to go to the Rajya Sabha. If the central government has a full majority in the Lok Sabha, but not a good majority in the Rajya Sabha, then the bill are not going to pass. But you can find in the last 3 and 4 years lot of bills passes. कई सारे बिल पास हुए क्योंकि current government has a full majority in Lok Sabha. They manage the majority in Rajya Sabha, hook and crook, and they pass the GST bill. They pass the your new bill regarding the. I am not going to discuss those bill because that is not within our my parameter. But my parameter is right now restricted to taxation system, so I say GST pass. But if you so go with the some other para, so you can say the situation article 370s and all this 35A, these all things are there. So whenever somebody is going to say what is tax, you are going to say compulsory execution of money under a law. And the law is formed by whom? Parliament.
Parliament is upper house and lower house. The upper house is a Rajya Sabha and lower house is a Lok Sabha. Then that means what the rule says. Rule says the PM, for example, Prime Minister, wants to introduce any taxation system, then he is going to intimate the Finance Minister. And when the Finance Minister is going to prepare a draft, okay, the draft paper. This is a draft, this is called draft. Then this is going to be, this draft is presented to where first? To Lok Sabha. Okay, if it is passed through the Lok Sabha, then this is going to be Rajya Sabha, upper house. And after this is going to, it is passed, suppose it is passed from Rajya Sabha and Lok Sabha, then this is going to be passed to, submitted to President of India. President. So this is called draft. In my language, this is called draft bill. And when it is going to pass out, then it is called act. So this, in this stage, this is a draft bill, and here it is going to be a act. So every law is enacted by the act. Until the act is not there, act is not going to form, that cannot be implemented in the real life. So Modi ji cannot increase anything. Modi ji have to go with the Finance Minister. Finance Minister is going to prepare a draft, then Lok Sabha, then Rajya Sabha, then President, that it is going to be an act. In my case, because the subject is a taxation, in our case, the taxation. What is tax? Compulsory execution of money under a law. Law formed by whom? The Parliament. The Rajya Sabha and Lok Sabha, that it is passed from the Parliament and President assent is there, then it become act. So this is the entire culture of taxation. This is not a simple method. This is the entire culture of taxation. Then bureaucracy is there. Then the lot of parameters are there. So it is very easy to say after the finance bill, oh, इसमें निर्मला सीतारमन ने ये नहीं किया, निर्मला सीतारमन ने वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया. This is very easy. But just see the background of the entire things. It's very tough to correlate and accommodate each and every corner of the society in a single largest things, because it's a crunch. And due to this, everybody knows that we need the government need a fund for the implementation of all the social welfare scheme. It is very, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इतना पैसा उन्होंने दे दिया, इतना पैसा उन्होंने दे दिया, इतना पैसा उन्होंने दे दिया. But this is a fact. वो पैसा वो छापेंगे थोड़ी, वो मशीन थोड़ी लगा के रखी उन्होंने कि वो पैसा छापेंगे. Definitely they are going to collect this money. यहाँ से दिया तो यहाँ से लेंगे, and they are going to impose certain amount of tax. It's maybe in a different form, maybe a direct, maybe a indirect, a lot of things they are going to impose in the budget, and then this revenue is going to be there, and the difference between that revenue collection and spending is going to be treated as fiscal deficit. And right now we are going to touch the 3.5, might be next year the situation is not going to be good, so our fiscal deficit is going to be wide. This is taxation system. It's not easy, it's need your dedication. After this all situations, suppose an act is passed, and once act is passed in the parliament, then you have to go with this. Then what is going to be there? The government is going to collect the tax in two segments. One segment is, we can say, direct, and second one is indirect. That is called direct tax. Second one is called indirect tax. Okay. When I say direct tax and indirect tax, sir, this is a very simple thing, tax and tax. Sometimes we heard the word duty. So both are the same thing, or these are the different thing? No sir, both are not the same thing. Both are the different thing. When I use the word tax, या जब मैं tax word use करता हूँ या जब मैं duty word use करता हूँ, तो दोनों का मतलब एक अलग होता है. Then sometimes some is going to ask, sir, we are going to use the word cess also. We are going to use the word cess also.
Yes, you must know as a taxation student, as a CA student, you must know the difference between the tax, difference between the duty, difference between the cess. These are the fundamental things you must learn. What is going to be duty? What is going to be tax? Tax is a compulsory execution of money under a law. Then what is duty and what is the tax? Both are the same thing? No. Duty is imposed on a product. Tax is imposed on, basically we can say it's on person. Tax is imposed on person. Duty is imposed on product. Just like custom duty. When we are importing something, then you have to pay duty. That is called, what you are importing. You are importing this. You are importing this. These are the product. If you are coming from outside India, that does not that you are coming from USA, you are a NRI, you have to pay custom duty on yourself. No, 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 no. Because that is only on product. But when I say tax, Mr. Vikram Biani earned rupees 5 crore, you have to pay the tax. If Reliance Industries pay earnings this much, and because person means not only person. Person does not mean that Vikram Biani is a person, Manav is a person, Anshul sir is a person, Shrey is a person, and Dilip sir is a person. We all are the person in general. But for taxation purpose, the definition of person is going to be wide enough. So tax is on person, duty is on a product. Like excise duty, still excise duty is there on a petroleum product in India. GST is not there in case of petroleum product and liquor. So when I say excise duty is on what? Product. Whenever something is going to be manufactured, that you have to pay the excise duty. So this is on product. Then cess, a very logical things you must learn. I'm expecting in 2021 budget, the Nirmala Sitharaman ji is going to introduce a COVID cess. What is sir cess? Cess is a special levy. Cess is a special levy collected for a specific purpose, and that is only going to be used for that purpose. The tax and duty can be used for any purpose by the government, but cess is only collected by the government in the name of a particular thing, and that amount can only used by the government for that purpose. If COVID cess is going to be introduced in the Finance Act 2021, that amount can only be used for the COVID purpose. Right now there are two cess. One is education cess, which was introduced in 2005, and second one is secondary higher education cess, which was introduced in 2007. The education cess indicate that the amount collected by the government is going to use for the development of education sector in India till 10. Secondary and higher education cess implement whatever amount the government is going to collect from there is going to use for the development of the class 11 and 12. But if COVID cess is going to be there is a certain cess in indirect taxation also. Okay, and then in 2018 they introduced a very 2019 they introduced a very interesting thing is called health cess. Health banao, that is called health cess. So there's a 2% education, 1% secondary higher education, 1% is health cess. So right now you are paying 4% cess. That means you are paying something extra special charges to the government for the fulfillment of that particular project of the government. So three words you must understand. One is called taxation, second one is called duty, third one is called cess. You have any queries, then tell me, because I'm not getting the exact link for that. Might be from tomorrow I will be yeah, I'm getting. So a lot of questions are there. Okay. Sir, it's a basic concept, Dinesh. Yes, it's a basic concept, beta. It's a basic concept. Should we watch this together with that of? Yes, definitely you have to watch both of us. Definitely. Is this a regular batch of tax along with the fast track of stress, sir? This is a regular.
दिस इंट्रोडक्शन इज रिगार्डिंग टू इंट्रोड्यूस, पहले सबसे पहले एक बात आप लोग समझ लो, जितने भी दोस्त हो मेरे, आपको एक चीज़ समझ लेनी पड़ेगी कि ये जो इंट्रोडक्शंस है, ओके, तो पॉइंट इज दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, और सर ऑलरेडी स्टार्टेड द डायरेक्ट टैक्सेशन पोर्शन, ओके. So after this some portion, after introduction of taxation, within 1 or 2 days we are going to start the GST. Okay. Okay. GST is going to start. Once you start with this, we are going to start with the GST. Nikita, which one is the first cess? The first cess is introduced in 2005 by the 2005, that is called education cess. In 2007 they introduced a second cess, that is called your secondary higher education cess, and third one is treated as health cess. Might be for the next year it is going to be one more going to be there. Okay. Anything else? Let's start. तो when we say direct tax, because once you understand the tax, ये आप जब तक टैक्स नहीं देखोगे ना, तब तक मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स में एंट्री नहीं ले सकता हूँ. इट इज़ वेरी टफ टू स्टार्ट डायरेक्टली. टुडे इज अ जीएसटी, लेट्स कम. जस्ट अंडरस्टैंड that is not primary, Dinesh, that is a education cess. Education cess. When I say direct tax, so any doubt regarding your tax, duty and cess? Tell me. Tax, duty and cess. Tax, duty and cess. Anything you want to know? Tax is on person, duty is on product, cess is a special levy. Okay? Okay? Any doubt? Let's start. So when I say direct tax, definitely direct tax is going to be a very simple thing. Just say it's only one Income Tax Act 1961. Second one is your, after income tax, we have to read Income Tax Rule 1962 with Finance Act 2019. Clear? Any question? So first we have to touch with the Income Tax Act, and then we have to go with the Income Tax Rule 1961, then Income Tax Finance Act 2019. But when I say indirect tax, we are going to touch the indirect tax. देखो कैसे indirect tax चलेगा. देखो, one is called goods and services tax. Okay, that is called GST. And second one is called your Custom Act. So custom is not in the syllabus of CA. Custom is not in the syllabus of CA. Goods and service tax, GST, is in our syllabus. The income tax portion is 60 and goods and service tax portion is 40. Be clear? What we are going to start very soon, we are going to start the indirect portion first, 40 marks. Any question, Nikita, Dinesh, Shreya? Any question, beta? Dr. Saifi, any question? Okay. So what is going to be income tax 1961, 1962, and here we are going to read goods and service tax, GST, and the Custom Act. Custom Act is not our syllabus. We have to go with the only goods and service tax. Continue. So when we are going to start with the taxation system, you must understand it's a direct or indirect, no issue at all. There is no issue at all. It's a direct or indirect, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपको खाली क्या समझना है ये देख लो. देखो,
When I say goods and services tax, anybody have any idea? Tell me fast. आपको पता है जीएसटी क्या है? Why it's a indirect and why it's a direct? ये पता है? देखिए, सपोज ये कौन? Who is he? He is Dinesh. Mr. Dinesh. ओके, ध्यान से देखना एवरीबॉडी. मिस्टर दिनेश check. Mr. Dinesh is an employee of Reliance Industry 1. Next, employee of a Reliance Industry. Point number 2. Mr. Dinesh owns a house. Okay. Mr. Dinesh also carrying business of clothes. जब भी उसे टाइम मिलता है, he also carrying here. Mr. Dinesh के पास owns 1 kg gold. Okay, be very clear. 1 kg gold. Just see what can be done. If Mr. Dinesh is an employee of a Reliance Industry, तो definitely Mr. Dinesh is getting something. बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. मिस्टर दिनेश इज गेटिंग समथिंग. उसको क्या बोलते हैं जो समथिंग समथिंग मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो एवरीबॉडी. निकिता, दिनेश, मिस्टर सैफ, जल्दी बोलो. जो आप कहीं पे नौकरी करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, उसे क्या कहते हैं? Remuneration. 100% that is called what? Remuneration. So the remuneration is, in other words we can say, उसे मिलता है salary. Agreed? All are agreed? Salary. Use the word salary. ये सब word मत use करो बच्चा लोग. Okay? You are not going to use this type of word. You are going to use proper word. What he is going to get? He is going to receive the word salary. Okay, sir. Next. If you owns a house, Dinesh owns a house, Saifi owns a house, Sriya owns a house, Ritika, Nikita, Vikram Biani, we all are owning a house, and this house is let out. And the most important thing, this house is let out. So definitely when you are going to let out the house, what you are going to receive? You are going to receive rent. That is going to be treated as rent. Agreed? Agreed. If you are going to carrying on a business of trading like purchasing, selling, and there is there, so we can say there is a, after purchasing and selling, there is a profit, some profit, or might be some loss. Anything can be happen, my dear friend. Profit or loss.
If you own say 1 kg gold, gold is your asset. Everybody knows the asset. Gold your asset. Well, yes sir, it's an asset. And this 1 kg gold you transfer, and during process you earn 5 lakh rupees. 5 lakh rupees. It's your gain. It's your gain. I am putting an example. ठीक है, अब मुझे बोलो, आप लोग ठीक से बोलना, समझ के बोलना. Let's start. Everybody be participate, be fast. The number one, if you are rendering the service in any place, that means the relationship between you and the pair is a relationship of what? Landlord and relationship what? Employer and employee. You are receiving salary. If you own a house, you are giving the house to a rent, then you are getting what? You are let out the house, you are getting the rent. That is the income from your property. Okay, you are carrying on business and profession, there may be profit, there may be loss, but always what you are going to say? You are going to say it's a profit from business. Okay, if you owns an asset, asset means it's a capital asset. If you owns an asset and it's a capital asset as per income tax act, and if you transfer यानी कि सेल किया अगर आपने उसे, तो कुछ कमाई हुई तो वो भी गेन है. ठीक है. और मैं दिनेश और सैफी कल रात को हम लोगों ने ये खेला था और 10-10 हजार रुपए हम लोगों ने जीते थे. ऐसी सिचुएशन आ सकती है. सो व्हेन द रिलेशन इन, ये हमारी इनकम है. मैंने जो भी इनकम आपके लाइफ में हो सकते हैं ये है. आप इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना. आपको पूरा का पूरा ये 5 फिंगर रूल है. इसी 5 फिंगर रूल में पूरा इनकम टैक्स है. Believe me, this is a 5 finger rule. In this 5 finger rule, the entire income tax is going to be there. So my point is very clear and you have to raise one point. Suppose मैंने निकिता को 1000 रुपये दिए. मैंने निकिता को 1000 रुपये दिए. निकिता आप उसे कहां लेके जाओगे? पहले पॉइंट सैलरी में या रेंट में या बिजनेस में या ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट में? बोलो निकिता. आई गिवन यू 1000 रुपीज एज यूजुअली. लो निकिता तुम 1000 रुपीज रखो या 10,000 रुपीज रखो. तो where that 10,000 is going to be termed by Nikita, whether in the Reliance, whether treated as a salary, whether treated as a rent, whether treated as a profit, whether treated as a capital gain on capital asset, कहाँ लेके जाओगे निकिता? Everybody reply me fast. निकिता ने कहा सैलरी. एकदम गलत जवाब. None of the above. दिनेश ने कहा none of the above. Okay. My point is very simple, my friend. Tell me none of the above. Okay. बोलो. Very good, दिनेश. यही तो बात है ना निकिता. This is very bad. जब भी अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ये लो 1000 रुपये और पूछे कि कहाँ लेके जाओगे, व्हाट यू आर गोइंग टू से, जानते हो क्या कहोगे आप लोग? आप क्या कहोगे? आप कहना क्या कहोगे? क्या कहोगे आप उसे? हम आपके है कौन? बोलोगे ना? आज के हमेशा ये कहोगे क्या? हम आपके है कौन? अब जब आप सामने वाले से पूछोगे कि हम आपके कौन, तो मैं क्या कहूंगा? देने वाला क्या कहेगा? देने वाला क्या कहेगा? मैं आपका एम्प्लॉयर हूं. तो आप कहोगे सैलरी. फिर लेने वाला क्या कहेगा? मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड हूं. तो तुम क्या कहोगे? हाउस प्रॉपर्टी. देने वाला क्या करी? वो परचेज सेल किए थे ना, ट्रेडिंग बिजनेस, डेटर्स क्रेडिटर्स. तब आप क्या कहोगे? बिजनेस और प्रोफेशन. या फिर मैंने आपको क्यों दिया? क्योंकि आपने मुझे अपना एसेट दिया. गोल्ड इज योर एसेट, योर शेयर, सिक्योरिटीज, बिल्डिंग, इट्स योर एसेट. आपने मुझे अपना एसेट दिया, इसलिए कहां लेके जाओगे? दैट इज कहां लेके जाओगे दोस्त? दिस इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल गेन. वेयर कैपिटल गेन. और कुछ नहीं समझ में आए तो कहां लेके जाओगे? एनी इनकम, that is called income under the head other source. I am not giving anything. ये एक छोटा सा पॉट है,
इसको डिस्कस करने मुझे 5-6 क्लास लगेंगे, उससे ज़्यादा ही लग जाएंगे. So I'm not going to enter into this. I'm just giving the point of direct taxation, indirect taxation, so I can start the indirect taxation after giving some examples of direct taxation. And Shrey sir is going to complete that. Before November, you have a luxury to write everything. Okay, you all clear? अब क्या कहोगे मुझे जल्दी से बताओ. हम आपके हैं कौन, कहोगे कि नहीं? आज के बाद जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो मेरे दोस्त, जल्दी से बोलो कि अब से आज के बाद कोई भी आपको कुछ भी दे, व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क. गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून. टेल मी बेटा, वेन एवर यू आर गोइंग टू आस्क, एनीबडी इज गोइंग टू आस्क, मैंने आपको 10,000 रुपये दिया, आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे? बोलो एवरीबडी इज क्लियर. टेल मी, आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे? हम आपके, आपके हैं कौन? अग्रीड? बोलो. आप लोग ऐसे इतना स्लो नहीं, ठीक नहीं लगता है, भी थोड़ा सा फास्ट. इस उम्र में मैं इतना फास्ट हुआ, आप तो जल्दी जल्दी होना चाहिए ना आप लोगों को. वी आर इन द लाइव सेशन, सो योर पार्टिसिपेशन इज मच 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 नीडेड. ठीक है ना? नक्शा में क्या पूछा है? सारे लेक्चर नहीं बेटा, ये तो अन अकाडमी जानती है कि कितने मेरे लेक्चर वो अपलोड करेंगे. ठीक है ना? याद रखोगे ना, हम आपके हैं कौन. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस. देखो एवरीबडी लिसन प्रॉपरली. देखो आप लोग कुछ चीज़ें आप समझ लो. आप लोग जितने लोग भी हो, बड़े छोटे हो, यू ऑल आर वेरी किड्स, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स और हार्डली 20 ईयर्स के हो. तो दिस इज द एज जहाँ पे आप लोगों को इस सब्जेक्ट को पकड़ना है. अगर आपने इसे पकड़ा तो आपने अपनी ज़िंदगी बना ली, क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू मस्ट बी चैंपियन इन ओनली 2 सब्जेक्ट. वन इज अकाउंट, जो आपके इंस्टिंक्ट है, ब्लड इंस्टिंक्ट में है, एंड सेकंड वन इज अ टैक्सेशन. इफ़ यू आर गुड इन टैक्सेशन, बिलीव मी, फॉर एग्जांपल मैं तो 15 साल हो गए मुझे. इट्स अ 15 ईयर्स लॉन्ग जर्नी. टेकन क्लासेस ऑल ओवर इंडिया इन एनी इंस्टीट्यूट, है ना, तेना सब जगह. So after this 10 and 12 years, I find that teaching as well as the consultancy is the most important vital role of a chartered accountant. Consultancy and taxation is the real picture. If you start consultancy and taxation, that means you are something else from the crowd. तो you must be very good in taxation. Believe me, ये आपके लिए एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है. आप इसको बहुत अच्छे से करो. आपका जितना बेसिक फंडामेंटल इसका क्लियर होगा, और इसे कॉम्प्लिकेटेड मत करना. आप माने इसको ऐसा सोचना है कि यू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट. हंसते हंसते घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको देखते देखते आपको लगेगा सारे प्रोविज़न आपके याद हो गए, सारे प्रोविज़न आपके याद हो गए. आप मुझ पे भरोसा रखो. दिस इज सच ए सब्जेक्ट कि जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा. अगर आपने क्लास को ढंग से सुना तो आपको लगेगा ओह ये तो मेरे दिमाग में बैठ गया है. बिकॉज व्हेन यू फॉल इन लव विद समवन तो आप पागल हो जाते हो. यही बात है इस सब्जेक्ट में, यही ब्यूटी है. ओके, एक बार जोर से रिप्लाई करो, यस 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 करके. एवरीबडी फास्ट. निकिता, नक्षत्रा, दिनेश, मिस्टर सैफ, अभिषेक, एक बार सब कोई बोलो यस यस यस. If you are going to reply me fast, so then I feel more energetic. Okay? Yes. 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 So we can start. Yes, this is for all CMA Inter, CA Inter. CMA Inter में यह होता है कि there are 2 types of things in case of DT is 100 marks and IDT is 100 marks. तो आप जो GST पढ़ोगे वो 100 marks का रहेगा. Same thing, everything is the same for CA, but marking is a different. Okay? My God, Nikki is there, Sachin is there, Anita Agarwal is there, Steph is there, Nikita is there. Oh my God, lot of guys are there. So let's start. So whenever the taxation system is going to be there, आप क्या कहोगे? ये देखो मेरे 5 finger rule. क्या कहोगे? से 5 finger rule. What is this? Any income
which is come from your employer if the relationship employer and employee is their salary. If you are a landlord and let out the house, then this is called income under the house property. Trading, debtors, creditors, this is business or profession. If you transfer any asset, this is called capital gain. और जब कुछ नहीं आए तो हम इसे क्या बोलेंगे, अदर सोर्स. जब पढ़ना लिखना नहीं आता है तो हम ठप्पा लगाते हैं ना, तो अदर सोर्स. तो ये जब बन जाएंगे, पांचों बनेंगी, तो क्या बनेगी, मुट्ठी. क्या बन गई ये मुट्ठी. क्या बन गई दोस्तों ये मुट्ठी. क्या बन गई दोस्तों ये मुट्ठी. इस मुट्ठी से थोड़ी सी दान दक्षिणा देंगे. मैं यस बेटा, थोड़ी सी दान दक्षिणा देंगे, ऐसे देंगे, थोड़ा थोड़ा दान एंड दक्षिणा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये दान दक्षिणा देने से जो मेरी इनकम होगी वो थोड़ा सा चला जाएगा. इसे हम कहते हैं डिडक्शंस. तो ये 5 फिंगर रूल आप याद रखो. याद रखोगे, टेल मी, ये याद रखोगे 5. फर्स्ट वन, योर इनकम अंडर द हेड सैलरी. सेकंड वन, इनकम अंडर द हेड house property. Third one, income under the head business or profession. Fourth one is a capital gain. Fifth one is your पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसलिए वो सब कहते हैं अदर सोर्स. तो सपोज हम आपके हैं कौन, अगेन ध्यान से सुनना, हम आपके आपके हैं कौन. तो अगर आप सामने मैंने कहा मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, तो आप कहां लेके जाओगे, सैलरी. आपने कहा कि मैं आपका लैंडलॉर्ड हूं, मैं कहां लेके जाऊंगा, हाउस प्रॉपर्टी. अगर मेरा और आपका रिलेशन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का है, या सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर का है, तो मैं कहां लेके जाऊंगा, बिजनेस और प्रोफेशन. इफ आई ट्रांसफर एन एसेट, दैट्स व्हाई यू आर पेइंग मी, मैं कहां लेके जाऊंगा, एसेट वर्ड आते ही कहां जाएगा, कैपिटल गेन. और चारों नहीं है, कहां क्यों दिया, रात को हम लोग बैठ के जुआ खेले थे ना, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ओके, हम आपके हैं कौन, याद रहेगा. द फर्स्ट वन इज सैलरी. एकदम फिंगर में इनकम टैक्स रखना, आपको जिंदगी में याद रखना, ये मेरा इनकम टैक्स है. दिस इज आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ छोड़ दो. फर्स्ट वन इज सैलरी, सेकंड वन इज अ हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज अ बिजनेस, फोर्थ वन इज अ कैपिटल गेन. और जब कुछ समझ में नहीं आए तो अंगूठा छाप लगा दो, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. जस्ट ए प्रीव्यू, जस्ट मैं क्या दे रहा हूं, एक छोटा सा आपको एक आइडिया दे रहा हूं. I am not giving anything else. I am just giving the direct tax. This is a portion of direct tax. Who is Mr. Dinesh? अब हम पिक्चर पे आए. Who is Mr. Dinesh? Mr. Dinesh is a person. एक बंदा है, ठीक है ना. अब अगर मिस्टर दिनेश को सैलरी इनकम आती है, हाउस की इनकम आती है, प्रॉफिट बिजनेस से आता है, कैपिटल गेन आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी मिस्टर दिनेश पे tax on your income, pay tax on your income, pay tax on your income. एंड ये किससे मांग रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, पे टैक्स. किसको बोल रही है, दिनेश को. डायरेक्टली दिनेश को बोल रही है ना, किसको बोल रही है, दिनेश को. इसलिए कौन सा टैक्स हुआ, ये कौन सा टैक्स हुआ मेरे दोस्त, ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली चार्जिंग. एवरीबडी क्लियर, जल्दी जल्दी जल्दी, उत्कर्ष, निकिता, अनिता, दिनेश, जल्दी बोलो. व्हाट्स द डायरेक्ट टैक्स, मिस्टर सैफी, यू आर क्लियर अबाउट द डायरेक्ट टैक्स, बोलो. डायरेक्टली द गवर्नमेंट इज चार्जिंग ऑन यू, दैट्स अ डायरेक्टली, डायरेक्ट. आप ही से मांगा ना, चलो सैलरी पे टैक्स दो, चलो रेंट पे टैक्स दो, चलो प्रॉफिट बिजनेस पे टैक्स दो, कैपिटल गेन पे टैक्स दो, अदर सोर्स पे टैक्स दो, डायरेक्टली द गवर्नमेंट इज चार्जिंग ऑन यू, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. अग्रीड, अग्रीड. एक बार जोर से, हाउ इज द जोश, जोर से बोलो. ये जो लाइव सेशन है, ये फेस टू फेस में अलग चीजें होती हैं. यहां पे आपको मेरे साथ ताल से ताल मिला के रखना पड़ेगा. वी आर समथिंग ऑलवेज इन टच. एवरीबडी क्लियर, दिस इज डायरेक्ट टैक्स. अब देखो, ध्यान से देखो, अब जिस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा मोल्ड कर रहा हूं, मैं चेंज कर रहा हूं. कैसे चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखो. ये कौन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल का नाम सुने हो आप लोग, एचयूएल, जल्दी बोलो, आधे लोग तो सो जाते हैं. एचयूएल, ये कौन, एचयूएल.
the Hindustan Unilever is going to manufacture a product. मान लो उसने एक प्रोडक्ट बनाया, HUL ने एक प्रोडक्ट बनाया, अग्रीड. When the HUL, Hindustan Unilever manufacture a product, क्या बनाया? प्रोडक्ट. गवर्नमेंट ने क्या किया उसके ऊपर? उसको कहा ये जो आपने बनाया है अब आप इसका क्या करोगे? बोला सर मैंने जो बनाया है मैं इसको सप्लाई करूंगा. क्या करोगे? सप्लाई करूंगा. सप्लाई किसको सप्लाई करोगे? किसी को भी कर सकता हूं. बेसिकली मैं कह सकता हूं कि सप्लाई टू होलसेलर. ओह सो डिस्टर्बिंग. सप्लाई किसको? होलसेलर को. होलसेलर किसको सप्लाई करेगा? फिर होलसेलर भी तो सप्लाई करेगा ना. होलसेलर को जब भाई तू क्या करेगा? बोला मैं भी सप्लाई करूंगा. किसको सप्लाई करोगे? होलसेलर को. मैंने पूछा. बोला सर मैं रिटेलर को सप्लाई करूंगा. ओके कर दो. फिर मैंने रिटेलर को पूछा भाई तू क्या करेगा? बोला रिटेलर. बोला मैं भी सप्लाई करूंगा. अच्छा तुम लोग सब सप्लाई करोगे, बाकी कोई काम नहीं है? उसने कहा मैं भी सप्लाई करूंगा. तो मैंने पूछा किसको सप्लाई करोगे? बोला मैं मिस्टर दिनेश को सप्लाई करूंगा. अच्छा कौन आया यहाँ पे पिक्चर में? फिर यहाँ पे आ गया दिनेश. फिर से पिक्चर में कौन आया? अगेन दिनेश. ओके. When I ask manufacture a product to supplier, when the supply is there, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये कौन? सप्लायर. ये होलसेलर कौन? रेसिपिएंट. ओके. फिर जब ये सप्लाई करेगा तो होलसेलर कौन बन जाएगा? सप्लायर. रिटेलर क्या बन जाएगा? क्या बनेगा उस केस में? रेसिपिएंट. ये चेन चल रही है. फिर रिटेलर क्या बनेगा? सप्लायर. और दिनेश क्या बनेगा? रेसिपिएंट. दीज आर द सिस्टम्स विच इज कैरिंग ऑन कैरिंग ऑन कैरिंग ऑन. बोला यस सर ये तो कैरी हो रहा है. आगे क्या करना है ध्यान से देखो. When the supplier is going to supply, the government says on this supply you have to charge GST. गवर्नमेंट कहती है मुझे GST दो. ठीक है. तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यानी कि सप्लायर ने गवर्नमेंट को GST दे दिया मान लो 10 रुपये. ठीक. सप्लायर कितना रुपया चार्ज कर रहा है? 100 रुपये प्रोडक्ट के और 10 रुपये का GST. यानी कि वो होलसेलर से कितना लेगा? 110. Whatever amount is paid out of your own pocket by the HUL to the government, he is going to recollect. He is going to recollect from whom? Wholesaler. He is going to recollect from the wholesaler. बोला ओके. होलसेलर से उसने ले लिया. जब होलसेलर से उसने लिया तो अपनी जेब से उसने कुछ नहीं दिया. अपनी जेब से गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया. उसने जो भी दिया उसने क्या किया? होलसेलर से ले लिया. डन. होलसेलर ने कितना पेमेंट किया था? 110. ठीक. प्लस वो कुछ प्रॉफिट कमाएगा. बोला हाँ सर वो प्रॉफिट तो कमाएगा. चलो कितनी प्रॉफिट कमाया? 20. कितना हुआ? 130. और उसके ऊपर वो फिर क्या करेगा? GST लगाएगा. 10 रुपया उसने दिया हो सकता है और 10 रुपये वो लेगा. वो किससे कलेक्ट करेगा? रिटेलर से. ठीक. अब रिटेलर के लिए कॉस्टिंग कितनी हो गई? 130. फिर उसमें क्या करेगा? 130 उसमें फिर वो प्रॉफिट कमाएगा 20 रुपीज़ का. और वो कितना लेगा? दिनेश से 150. तो अल्टीमेटली अगर आप देखो ये जो 10 रुपये गवर्नमेंट को दिए HUL ने, उसने किससे लिए? HUL रिकवर द अमाउंट फ्रॉम होम? होलसेलर. होलसेलर रिकवर द अमाउंट फ्रॉम होम? रिटेलर. रिटेलर कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम होम? दिनेश. अल्टीमेटली पिक्चर क्या हुई? डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट डायरेक्टली दिनेश के कान को ऐसे पकड़ रही थी ना. यहाँ पे क्या कर रही थी? इस जगह अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे दिनेश के कान को गवर्नमेंट सीधा मार रही थी. बोलो दो पैसे दो. अब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में दिनेश से सीधा नहीं मांगा जा रहा है. इस केस में HUL से मांग रही है. HUL फिर किससे ले रहा? होलसेलर से. होलसेलर किससे ले रहा? रिटेलर से. रिटेलर किससे ले रहा? दिनेश से. यानी कि जा तो दिनेश की जेब से ही रहा है.
किसी और की जेब से नहीं जा रहा है, ना एचयूएल की जेब से जा रहा है, ना होलसेलर रिटेलर, जा रहा है किसके, हमारी जेब से। बट हमें पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट हमसे ले रही है, बस हम दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। सुबह जब से आप उठे होगे, अग्रीड और डिसएग्री, जल्दी से बोलो, आप जब सुबह उठे होंगे नींद से, तब आपने सबसे पहले आज फोन किया होगा, हेलो, हाँ आज सुना है कि कोई नया फैकल्टी टैक्स पढ़ाने आएगा, हाँ चलो चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसा है, कैसा नहीं है, किस तरीके से है, चलो चलते हैं, हाँ हाँ चलो। आपने फोन रख दिया, फिर एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा। आप लोग तो विद्वान हो, ज्ञाता हो, एक ही दिन में आप सबको समझ जाते हो कि कौन कैसा है। हमें तो 15 साल लग गए ये बताने में कि हमें टैक्स अभी तक हम 15 साल में नहीं सीखे, आप तो एक दिन में सीख जाओगे, एक दिन में आप अच्छा और बुरे की सारी चीजें समझ जाओगे। नहीं, तो जब आपने फोन किया तो आपने या तो वोडाफोन से फोन किया होगा, आपने जियो से फोन किया होगा, या आपने एयरटेल से फोन किया होगा। पर आप लोगों को क्या पता था, क्या आप लोगों को यह बात पता थी कि जो फोन कॉल आप कर रहे हो उस फोन कॉल के ऊपर उसने जीएसटी लगा दी? क्या आपको पता थी? नहीं थी ना, लगा दी, आपने दे भी दिया, आपको पता भी नहीं चला है। आपको पता चला क्या? नहीं। फिर क्या हुआ, मम्मी को कहा, मम्मी जल्दी से नाश्ता लेके आओ, जल्दी से नाश्ता लेके आओ। मम्मी ने ब्रेड खोला, भुजिया खोला, चनाचूर खोला, मम्मी ने आपको जैम लगाया, ये लगाया, मस्त होके आपने खा भी लिया, नाश्ता भी आपका हो गया, ब्रेकफास्ट, दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट, इट्स कंप्लीटेड। आपने ये सोचा उस जैम के ऊपर, वो केचप के ऊपर, वो चिप्स के ऊपर जो आपने बाहर से खरीद के लाया उसके ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी ले चुकी है? आपने कहा नहीं पता, या हो सकता है थोड़ा बहुत पता भी हो। फिर आप आराम से दिन हुआ, फिर आपने मम्मी को कहा, मम्मी जल्दी से खाना दे दो। आपने लंच खाया, लंच में मम्मी ने आलू की सब्जी बनाई, लंच में मम्मी ने परवल की सब्जी बनाई, लंच में मम्मी ने सैलेड काट के दी। वो जो नेचुरल जो वेजिटेबल्स आप लेके आए उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं कोई टैक्स होगा नहीं, नेचुरल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एक्सक्यूज मी, नहीं होगा। ठीक है, फिर आप अभी जब देख रहे हो, जितने लोग यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं ना, सबके हाथ में कोई पेन होगा, पेंसिल होगी, ऐसे देख रहे होंगे, ऐसे देख रहे होंगे, कोई ऐसे देख रहा होगा, सैफी सर ऐसे देख रहे होंगे, अच्छा ये डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट हो रहा होगा, अच्छा ये बंदा ठीक बोल तो रहा है, हाँ ठीक है, ठीक ही बोल रहा होगा, देखते हैं। दीज आर द थिंग्स, दीज आर द थिंग्स यू ऑल आर डूइंग। हम भी ऐसा ही करते थे बचपन में, ठीक है, अब तो बड़े हो गए हैं, बूढ़े होने को आगे, कब्र में पांव झूलने को हैं, ठीक बोल रहा हूं? ऐसा ही हो रहा होगा ना। तो ये जो चीजें आप चिप्स लेके बैठे हो, ये जो इंटरनेट कनेक्शंस आप जिसके थ्रू आप क्लास देख रहे हो, ये सारी चीजें, इसके ऊपर सरकार आपसे इनडायरेक्ट टैक्स लगा चुकी है। क्या आपको पता चला? टेल मी, क्या आपको पता चल रहा है? क्या आपने कभी प्रोटेस्ट किया? इनकम टैक्स की रेट 10% से 5% हो जाए, आप बोलते बजट बहुत अच्छा है, वाह क्या बजट बनाया है सरकार ने। क्यों? आपको वो दिखता है कि 10 का 5 हो गया, दिखता है ना। पर अगर सरकार पराठा के ऊपर 5 से 18% कर रही है, आप कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको दिखता नहीं है। जो दिखता है वो बिकता है। ये संसार की माया है दोस्त, यही संसार की माया है। तो आप ये सोचो समझो, इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो गवर्नमेंट के कलेक्शन का 82% से प्लस है, और डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो गवर्नमेंट का बहुत कम है। आउट ऑफ 130 पॉपुलेशन, 130 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया में है, उस 130 करोड़ की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, एवरीबॉडी इज पेइंग द इनडायरेक्ट टैक्स विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अग्रीड? उनको पता ही नहीं है इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता क्या है, उनको पता नहीं है वो चीजें क्या हो रही है, बस उन्हें पता है एमआरपी लिखा हुआ है दे दो। बट जब डायरेक्ट टैक्स की बात आती है, जब डायरेक्ट टैक्स की बात आती है तो सब कोई देखते हैं रेट क्या है। सर अगर मैं एक फैमिली 5 लोगों की मान के चलूं तो हमारे देश की आबादी के हिसाब से नियरली
30 to 35 करोड़ फैमिलीज आर देयर, और 30 से 35 करोड़ की फैमिली का अगर 10% लोग रिटर्न फाइल करते हैं अपने इनकम टैक्स का, इसका मतलब बाकी लोग कमाते नहीं है। हाँ या ना? बाकी लोग कमाते हैं कि नहीं? एवरीबॉडी ना, क्या बाकी लोग कमाते नहीं है? सब लोग कमाते हैं मेरे दोस्त, बट डायरेक्ट टैक्स का मतलब ही है चोरी करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन करना है, बताओ ना सर कैसे इन्वेस्टमेंट करूं, सर प्लीज बताओ ना मुझे कैसे इसको करूं, बताओ ना सर कौन सा एग्जाम्पशन लूं, बताओ ना सर कौन सा टैक्सेशन करूं। ये सारी चीजें आप क्या करते हो एज एन एसएससी, यू आर क्लेमिंग टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, जब तक आप इसके बारे में नहीं समझोगे कि कैसे क्या अपने क्लाइंट को देना है, तो क्लाइंट की पहली प्रायोरिटी आपके आज के संसार में यही है मेरे दोस्त, टैक्स बचाओ, टैक्स बचाओ, टैक्स बचाओ, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में तो बचेगा नहीं। वो तो रिलायंस मुकेश अंबानी भी जो ब्रेड खाता है ना, उस पर जो टैक्स मुकेश अंबानी देता है, अगर वो ब्रेड मैं खाऊं तो वही टैक्स मुझे देना है, बिकॉज दिस इज द सिस्टम ऑफ what indirect taxation. But in direct taxation, more earning more tax, more earning more tax, more earning more tax। कहते हैं ना, डायरेक्ट टैक्स कहता है हम मेंटेन करेंगे, ठीक, और इनडायरेक्ट टैक्स कहता है एवरीबॉडी इज इक्वल इन द वर्ल्ड, सब कोई एक जैसे होते हैं, कम बेसिस से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सर विच वन इज बेटर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? एक बार जोर से बोल दो मिस्टर सैफी, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट माय फ्रेंड? You understood? You all, any questions you have? Any questions you have, please ask me. कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो मुझे पूछो, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन पूछोगे मैं अपने एक्सपीरियंस से उतना बता सकूंगा आपके मन में क्या क्या हो सकता है। अग्रीड ना? तो डायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नो। एवरीबॉडी इज क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, एवरीबॉडी इज क्लियर? इट्स अ टोटल क्लियर, थोड़ा क्लियर, मोटा क्लियर, बहुत क्लियर, छोटा क्लियर, इट्स अ हेवी क्लियर, सुपर क्लियर, बहुत सारे क्लियर की बहुत डेफिनेशन होती है। तो यू हैव टू से मोटा क्लियर। मेरी क्लास में जाओ तो मोटा क्लियर, छोटा क्लियर, तो छोटा क्लियर बोलोगे तो मैं उसको और ज्यादा डेप्थ में जाके जाऊंगा, डूब डूब के हम समंदर में पड़ेंगे। उसने पूछा है सर जीएसटी में सेक्शन 18, एकदम शिवम सीधा आया है, गोली की तरह बात कर रहा है। सर जीएसटी, एक सेकंड शिवम, सुमम वेट 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 बेटा, वेट 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 वेट। सर जीएसटी में सेक्शन 18 में न्यू रजिस्ट्रेशन और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, बेटा 18(1) की बात कर रहे हो, 18(1)A एंड 18(1)B, वट एवर क्वेश्चन यू आर आस्किंग, दिस इज कॉल्ड 18(1)A, 18(1)B। 18(1)A और 18(1)B जो है उसमें आपका पहला है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है या वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(5) कराया है, तो आपको आईटीसी मिलेगा प्रीवियस डे के जितने भी इनपुट स्टॉक या फिर इनपुट इन हैंड या WIP जो भी आपको क्रेडिट मिलेगा, पर कैपिटल गुड्स पे तो आपको कोई क्रेडिट नहीं है। द पॉइंट इज दैट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट, विद द जीएसटी डिपार्टमेंट, ऑल ऑफ ए सडन यू रजिस्टर्ड। बट अब जब 18(1)B, C और D में जाते हो तो आपको कैपिटल गुड्स का रजिस्ट्रेशन मिलता है। और वन मोर थिंग व्हाट आई एम गिविंग टू यू, you have to note down this number, or if you have any queries तो might be ये नहीं ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली उन क्वेरीज को अलग तरीके से आप मुझे करिएगा, मैं हर क्वेरीज के लिए आपको देता हूँ। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी के अलावा और भी टैक्स है, एक और है कस्टम एक्ट है बेटा, कस्टम एक्ट है, पर कस्टम एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। तो निकिता ने पूछा है सर अल्कोहल पे कौन सा टैक्स लगता है? बेटा अल्कोहल पे केवल अभी एक्साइज ड्यूटी लगती है। अल्कोहल पे क्या लगती है? एक्साइज ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है बेटा, दैट इज कॉल्ड स्टेट एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू गो विथ।
Tara is asking, that means a person whose income does not come in tax slab is paying. Yes, beta. Even you are earning rupees 100 or 200 every day, but still you are paying tax every day. आपकी कमाई से कमा रहे हो तभी कुछ खा रहे हो, तभी कुछ खरीद रहे हो, तो आप इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं हो. यू आर नॉट इन एक्सेस ऑफ 250 और 3 लाख और 5 लाख वट एवर. पर आप जीएसटी हर एक ट्रांजेक्शन पे देख रहे हो. अभी जो आप लिख रहे हो उस पे भी आप दे रहे हो टैक्स. वैट, मिस्टर सैफी, वैट इज देयर बेटा. तुम्हारे क्या बोलते हैं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर वैट है अभी भी. स्टेट वैट इज देयर बेटा, वैट इज देयर. ठीक है, वैट इज देयर. अगेन टुमारो वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट एट maybe at 1 o'clock or 2 o'clock or 3 o'clock, maybe 1, 2 or 3. So time will be going to be updated tomorrow at morning. आप चिंता मत करो, रेगुलर क्लास होगी. कल भी क्लास है, तो क्लास हर दिन होगी. Nikita, right now you are just going to note down. My notes are nearly 1500 pages notes. I will share the PDF. The team is going to share the entire PDF to you. Okay, so we are going to discuss. It's not only PPTs and all this. This entire things on PDF, because lot of things you have to learn. If in case of that you have to learn 1500 pages for that. So PDF will be supplied, volume 1, volume 2, volume 3, what everything is will be supplied before starting the class. Right now your introduction, so you first learn what is the taxation. You must ask a lot of questions to me. तो मुझे ठीक है. निकिता, आर यू क्लियर विद द अल्कोहल पे कौन सा टैक्स लगता है? अल्कोहल पे भी स्टेट एक्साइज टैक्स लगता है. नेक्स्ट क्लास आई विल गोइंग टू गिव यू द सम कॉन्सेप्ट ऑफ योर व्हाट जीएसटी. एनी मोर क्वेश्चंस? बोलो. अच्छा, my question to all of you, again I am asking the same question to you. So tax are basically two type. One is called direct taxation and second one is called direct indirect taxation. I am asking, you have to reply. Tax are basically two type, direct tax and indirect tax. Correct? डायरेक्ट टैक्स में क्या करना है, गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली चार्ज करेगी. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या करना है, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली चार्ज करेगी. आप देते रहो, आपको पता नहीं चलेगा. The first thing is that what is tax? It's a compulsory execution of money. Tara, it is going to be every day. It is going to be an introduction, and tomorrow we are going to get an introduction of GST. Okay, मैं बेसिकली इस बार जीएसटी आई एम गोइंग टू टच द इनडायरेक्ट टैक्स. आज तो हम थोड़ा सा बात करने के लिए आ गए एक दूसरे से, टू नो ईच अदर. सो टुमारो यू विल ज्वाइन. सो ओके, और बोलो. एनी मोर क्वेश्चन? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट. नेक्स्ट, व्हेन द एंटायर थिंग इज देयर अ कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा अंबेडकर जी ने बनाया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखी गई थी. ठीक है ना. वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो फिर से देखो, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था बाबा अंबेडकर ने जो बनाया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे है. ध्यान से देखो, कौन सा है? 7th शेड्यूल. विच वन? 7th शेड्यूल. ओके. इस 7th शेड्यूल में there are certain list. In 7th schedule में there are certain list. Just check. ध्यान से देखना है. List 1, list 2 and the list 3. 1, 2, 3. Okay. In this list 1, this is called beta union list. What is called? Always याद रखना. सीए के स्टूडेंट हो, you must know the fact of the constitution. Union list. Union मतलब central government. This is called what? State list. And this is what called? This is called concurrent list. So how the direct and indirect tax is going to be generated, ये पहले जानो. Concurrent list.
We are not going to discuss anything about the concurrent list. Agreed? Clear? But when we are going to discuss union list में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देखना है और स्टेट लिस्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दिस टू. ओके, तो यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट. व्हाट यूनियन लिस्ट से स्टेट लिस्ट से? यूनियन लिस्ट में एक एंट्री है, ध्यान से देखना. व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस? एंट्री नंबर 82 of the constitution clearly says tax on income. Tax on income. This is called direct tax. Tax on income is direct tax. That entry number 82 means tax on income. Tax on income. This is directly the constitution says the government, central government. कौन से गवर्नमेंट को पावर है इनकम पे टैक्स लेने का? सेंट्रल और स्टेट लिस्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. टेल मी फास्ट. टेल मी फास्ट. ओके, किसको पावर है टैक्स लेने का? जल्दी बोलो, किसको पावर है टैक्स लेने का? इनकम पे टैक्स लेने का पावर किसको है? टैक्स ऑन इनकम किसको है? किसके पास पावर है? क्या स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है इनकम के ऊपर? ना. आपको कोई पूछे ले सकती है, आप कहोगे ना. ये जो पावर है टैक्स लेने का वो किसके पास है? वो यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है. स्टेट government cannot impose the tax on your income. Okay, be very clear beta, be very clear. Next entry is entry number 83. This entry says duty on import and export. Duty on import and export. इसका मतलब क्या हुआ? वी कैन से दिस इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी. दिस इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. इनकम डायरेक्ट टैक्स की जगह इनकम टैक्स. वी कैन राइट द वर्ड इनकम टैक्स. वी कैन राइट द वर्ड इनकम टैक्स. अग्रीड? तो इनकम टैक्स इज कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटी कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, ये लगाने का अधिकार किसको है? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि यूनियन को है. अब मुद्दा यहां से निकल के आता है टैक्स ऑन इनकम. एक वर्ड देखो, क्या पूरा ये वर्ड देखो, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम. अदर देन एग्रीकल्चर इनकम. ओके, अब इस बात में क्या है, यानी कि जो भी इनकम होगी उस इनकम के ऊपर टैक्स कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा नहीं सकता है. कौन नहीं लगा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगा नहीं सकता है. आपने जब इलेक्शन की रैली देखी होगी तो इलेक्शन की रैली में कई बड़े बड़े महानुभाव जो नेता होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सुनो भाई और बहनों, चाहे मुझे अगर सरकार गोली मार दे, मैं किसान के ऊपर टैक्स नहीं लगाऊंगा. ओ भाई साहब, आप ऐसी बातें बोल क्यों रहे हो? बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम. जब एग्रीकल्चर इनकम पे सरकार टैक्स ही नहीं लगा सकेगी तो फिर आप ये सारी बकवास हमारे देश की मासूम जनता के सामने क्यों कर रहे हो? आपका अधिकार की बात कर रहे हो, किसी का अधिकार नहीं है. बिकॉज constitution restrict the central government to impose a tax. But my friend, I will tell you one very interesting thing. The state government has a power to impose a tax on agriculture income. Clear? The state government has a power to impose a tax on agriculture income. The state government has a power to impose a tax on agriculture income. Okay. तो यूनियन लिस्ट कोई भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाने के पहले क्या बोलेगी, क्या देखेगी? क्या उसका पावर है? वो कॉन्स्टिट्यूशन को खोलेगी, यूनियन लिस्ट को खोलेगी, लिस्ट 1. फिर उस लिस्ट में वो चेक करेगी क्या उसका पावर है. अगर उसे लगता है कि हाँ उसका पावर है तो वो क्या करेंगे? ड्राफ्ट बिल बनाएंगे.
ड्राफ्ट बिल को राज्यसभा और लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा। लोकसभा राज्यसभा में पास होगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा एंड दैट विल बिकम द एक्ट। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? द बिल बिकम द एक्ट। हाउ? एक बिल एक्ट कैसे बनता है? आजकल तो एवरीबॉडी, सोशल मीडिया इज सो गुड, आप लोग भी न्यूज़ देखते ही होंगे। आफ्टर कोविड तो सब कोई न्यूज़ देखता है। तो आपने देखा होगा कश्मीर और राम मंदिर के इन सब जजमेंट का न्यूज़ में बड़ा इंटरेस्ट सारे की सारी जनरेशन को आया है। तो आपने कभी नहीं फॉलो किया कि पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया गया है, पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया गया, पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया गया, बिल प्रेजेंट किया गया है, अब वो पास होगा। पहले वो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, तब जाके वो क्या बनेगा? एक्ट। एवरीबॉडी क्लियर? थोड़ा क्लियर, मोटा क्लियर, कैसा क्लियर? So how it is going to be converted into bill and all these things, everything? Okay, मजा आ रहा है पढ़ के? जल्दी से बोलो, मजा आ रहा है? क्योंकि जब तक किसी भी चीज में मजा ना आए वो काम हो नहीं सकता है। अग्रीड? जब तक किसी भी चीज में मजा ना आए वो काम हो नहीं सकता है, वो काम हो नहीं सकता है, वो काम हो नहीं सकता है। यू फॉल, यू मस्ट, कोई भी चीज इंटरटेनमेंट के साथ जुड़ी होती है। एवरीबॉडी क्लियर? ओके। सो अगर मैं आपको फिनेंस मिनिस्टर, यस दिनेश, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो जाएगी। यस बेटा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की जरूरत होती है। जब तक प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करता है ना बेटा, तब तक वो कभी भी एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो एवरीथिंग का जो पावर है, हमारा जो फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है वो हमारा प्रेसिडेंट है, वो हमारे प्रेसिडेंट है, तो हमें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो वी कैन प्रोसीड, ओके। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ मैं आपको इस फिनेंस मिनिस्टर बना रहा हूँ तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे। अगर मैं आपको फिनेंस मिनिस्टर बना दूं और मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर बोल के बोलूं, ए निकिता, ए तारा, ए दिनेश, ए अनीता, ओ सैफी, जाओ कल से 2000 रुपये का टैक्स लगाओ पर आदमी के ऊपर, क्या तुम लगाओगे? क्या तुम लगाओगे? बोलो, कल क्या तुम लगाओगे? क्या ऐसा कोई गलत काम करोगे या किसको चेक करोगे? इफ आई आस्क ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, किसको आप चेक करोगे? लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3? Which one you are going to ask? If I am the PM, you are my FM, you all are my FM, फिनांस मिनिस्टर, तो अगर मैं बोलूँ कल से आप 2000 रुपये टैक्स लगा दीजिए, तो क्या आप मेरी बात सुन लोगे? क्या आप अभी अनाउंस कर दोगे 2,02,000 रुपये टैक्स हर लोगों को देना पड़ेगा? क्या मैं ऐसा कुछ काम करोगे? नहीं करोगे। आप पहले क्या देखोगे? लिस्ट 1। ध्यान से, पहले क्या देखोगे? आप लिस्ट 1 देखोगे, देखोगे ना? आप पहले क्या देखोगे? लिस्ट 1 देखोगे। लिस्ट 1 में चेक करोगे क्या अधिकार है, पावर है। पावर होगा तभी होगा, नहीं तो, और पावर हो गया तो आप क्या करोगे? एक ड्राफ्ट बनाओगे। ड्राफ्ट बना के क्या करोगे? पार्लियामेंट में प्रेजेंट करोगे। पार्लियामेंट प्रेजेंट करने के बाद क्या होगा? पास होगा लोअर हाउस, अपर हाउस, उसके बाद क्या होगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो बिल किस में कन्वर्ट हो गया? इस पूरे के पूरे लफड़े में बिल इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? Bill is converted into what? The act, and the act. So my question to again to you all, you are clear about the word duty, tax and cess? आपको ये तीनों वर्ड क्लियर हुए? The words, 3 words are very interesting word. आपको ये तीनों वर्ड क्लियर हुए? व्हाट इज टैक्स, अब समझ में आया व्हाट इज टैक्स। सेकेंड वन इज अ ड्यूटी, थर्ड वन इज अ सेस। ठीक, हम लोग, सो वी आर गोइंग टू रैप अप द सेशन अभी, और मैं आपके साथ फिर कल मिलूँगा। कल मैं सीरियस
नोट पे मिलूंगा। कल मैं आपके साथ इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करूंगा। कल मैं आपके साथ इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करूंगा। सो आई होप टुमारो यू विल going to enjoy, from tomorrow onwards you are going to enjoy the indirect taxations, GSTs and all these things are there. So tomorrow there will be no discussion on direct taxation, only indirect taxation, because direct taxation is taken by Shreya sir. आप लोग श्रेय सर की क्लास कर रहे हो तो कई ने मुझे पूछा श्रेय सर कहाँ हैं, श्रेय सर कहाँ हैं। तो श्रेय सर अभी आ जाएंगे, वो यहाँ से वो टेक ओवर करेंगे। मैं कल से इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम मेरे और उनके बीच की एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी तैयारी, अगर आप जुलाई में भी कोई बंदा एग्जाम दे तो हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सको, और नवंबर के लिए पूरा हम जल्दी से जल्दी करेंगे। बोलो एवरीबॉडी इज क्लियर? किसी तरीके का कोई डाउट हो तो अभी भी मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूँ, आप मुझसे पूछ लो किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो। एनी क्वेश्चंस इफ यू वांट आई कैन गिव यू द आंसर। अभी ये लोड हो जाएगा तारा, तो यू जस्ट चेक ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो अभी लोड होगा ना बेटा, दिस इज गोइंग टू बी अपलोडेड, तो यू जस्ट चेक। फॉर टुमारो यू आर नॉट गोइंग टू लेट, क्योंकि जीएसटी में ये बहुत मुश्किल होगा। जीएसटी में मेरे साथ आपको एवरी टाइम यू मस्ट बी प्रेजेंट आउट देयर along with me। और जो मजा लाइव सेशन का है ना, दैट इज अ वंडरफुल वन, जहां हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। ओके, सो द entire point is simple। टाइम कल का मोस्ट प्रोबेबली tomorrow is going to be 1 o'clock। tomorrow time is going to be 1 o'clock। the live session is going to be 1 o'clock। clear? लाइव सेशन विल बी 1 o'clock, 1 के करीब हम करेंगे, 1 PM लाइव सेशन ऑफ जीएसटी। मजा आया आप लोगों को? 1 मिनट खत्म होने वाला है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मजा आया आप लोगों को? समझ आया? समझ आया? मैं जा सकता हूं? काश ये कोई गाना गा दे, अभी ना जाओ अभी तो आए हो। हाँ, कोई गाता ही नहीं है, जस्ट वेट करता है आज की जनरेशन कि टीचर बोले जा रहा हूँ तो बच्चा बोलता हो माय गॉड कितनी बड़ी बला सर से चली गई। पहले जमाने में गुरु और शिक्षक थे तो क्या कहते थे? अभी तो आए हो अभी मत जाओ, अभी घंटे भर और कुछ पढ़ाओ। हाँ, चलो कोई बात नहीं, फिर कल मिलेंगे प्यार के साथ। कल का सेशन एकदम अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द टुमारो सेशंस। ठीक है ना? मैं ऐसा ही हूँ बेटा, मैं ऐसा ही हूँ डॉक्टर सैफी। बस देखो, गाना भी गाया तो किसने गाया? दिनेश ने। अभी नजारे दिनेश, मुझे जाने दो, कोई और गाता तो अच्छा रहता। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ फाइन। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आई होप टुमारो वी आर गोइंग टू बी देयर। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। टुमारो हम आग लगा देंगे, सब्जेक्ट को जान जाएंगे, और हम उस सब्जेक्ट को ऐसा तैयार करेंगे कि हम सबको पढ़ाना भी चालू कर दें। प्रॉमिस मी, टुमारो वे विल कम व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ जीएसटी। ओनली वन माइंडसेट होना चाहिए, नॉट ओनली एग्जाम। दूसरा माइंडसेट होना चाहिए, अब इसके बाद हम किसी और को पढ़ाएंगे। वो जब माइंडसेट आपके दिमाग में आ गया ना कि हम किसी और को पढ़ाएंगे सीखने के बाद, बिलीव मी नोबडी कैन स्टॉप यू, nobody can stop you। thank you very much, thank you very much, thank you very much।